aspirants. He will be taking another session for us of quantitative aptitude, and he has certainly made the preparation for data interpretation so easy for all of us. And a Project Maverick, the aspirant as well as I look forward to an amazing session today with him. Over to you, sir. Thank you, Harsh. Thank you, Harshvardhan. Yeah, good afternoon, everyone. Good evening, Shubhangi. Shubhangi Kumari Mishra. Yeah, Shubhangi, I'm Rahul Mishra. Rishikesh. So, good evening, everyone. So, today we are learning permutation combination and how we comprehend in a smaller data and a bigger data. It's all about data interpretation. Earlier, ये नाम नहीं आता था कि आपके यहाँ DI पूछी जाएगी, but actually is all data given, and in every exam they are testing your comprehension, interpretations. Yes or no? जैसे इंग्लिश में देखते होगे reading comprehension, right? The same as data interpretations, right? So permutation combination, this is a topic, is also appearing in the IIT is a NEET, is these kind of exams, right? So there's a number of illusions for this topic. Am I audible to everyone? Yes, sir. Right. So the many students have a myth that this topic belongs to the 12th class core mathematics, but today will prove we can deal the questions or data interpretations. No 12th mathematics is needed, or the common sense, right? And we are going to use just logic, just your common sense, and by that we'll break the questions. So what is permutation? अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछूं कि भी और स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं, so till then देखो these formulas looks scary, right? So we are not going to use these formulas. लिख रखा है, थोड़ा सा डरोगे तुम लोग, right? But we are not going to use it in our comprehensions. So to you, what is permutation? तो बताएगा. Permutation का दूसरा, very good. ऋषिकेश ने बोला like loud and clear. तो शुभांगी बताओ, what do you mean by permutation? Beautiful, correct. तो इसका मतलब ये वर्ड तो भले ही शुभांगी ने बहुत अच्छा आंसर किया है, परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट. अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो कि द पीपल हु आर इलिटरेट, आर दे नॉट अरेंजिंग द थिंग्स? एंड इफ योर लाइफ इज नॉट अरेंज्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जंगल एंड गार्डन? वो जंगल जिसको आपने अरेंज कर दिया है, दैट इज गार्डन, राइट? वो जानवर जिसको आपने अरेंज कर दिया है, इंसान है. So to the Karl Marx, human is a rational animal. तो rationality ने किया क्या है? By applying your logic, what we did, we are arranging the things, right? And we want some required arrangement. तो arrangement daily life में हम सारे के सारे, चाहे education proper है या नहीं है, we keep doing it. Yes or no? Right? So arrangement is an integral part of your all life. तो परमुटेशन की जगह पे दूसरा वर्ड हम लिखते हैं, दैट इज अरेंजमेंट. ठीक है, एंड लेट्स वर्क ऑन दिस, राइट? एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक डेटा. Very basic data you can easily comprehend, and not then I'll for sure I'm going to support. All right, if I say, if we have these two chairs, there are two elements A and A, how many ways we can arrange? Places fixed है. अगर ये डेटा है कि आपके पास दो चेयर है, तो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज इट? इट्स बेटर यू रिस्पॉन्ड द टू वेज. ऋषिकेश, वेरी गुड. टू वेज. रीना रंजन का भी दो आया. ओके ओके. अच्छा ऋषिकेश, शुभांगी तुम्हारा क्या आंसर है? अभी काफी कम स्टूडेंट्स हैं, तो लाइक हम आराम से लाइक इट्स अ कंफर्टेबल फॉर ऑल, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, राइट? रीना का भी टू है और ऋषिकेश का भी टू. शुभांगी का भी टू ही है, करेक्ट?
अब देखो मैंने अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी हैं तो वी आर डिस्कसिंग डीप टू द साइकोलॉजी नॉलेज लाइक योर हाउ योर ब्रेन फंक्शनिंग। तो अगर हम दिमाग में अलर्टनेस यूज ना करें तो दिमाग चलने का जो प्रोसेस होगा, वो जो आधार यूज करेगा, जो बेस यूज करेगा, दैट इज पास्ट, राइट। तो इस सिचुएशन को भी होता क्या है, इज SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस सिचुएशन को भी आपने पास्ट नजरिए से देखा एंड यू अप्लाइड, दो चीजें हैं तो 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 तरीके से। ऐसे किया होगा सबने, ये सब, राइट। अब एक बात बताओ, मान ली तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया और आपके घर में 4 चेयर्स पड़ी थी, ए और ए, ठीक है। वो गेस्ट चला गया आफ्टर मंथ और 2, दिवाली पे दिवाला निकालने ये गेस्ट दोबारा आने वाला है एंड दिस गेस्ट योर फेवरेट। हमें कुछ टाइप के गेस्ट हमारे फेवरेट होते हैं, मामू या कुछ तो होते हैं कि यार घर क्यों आ गए, और कुछ गेस्ट होते हैं फेवरेट जो जो आप चाहते हो कि ये आए, यूर एक्साइटेड। तो यूर वेरी एक्साइटेड, दिस काइंड ऑफ गेस्ट इज योर फेवरेट एंड तुमने सोचा कि यार डाइनिंग रूम में 4 चेयर पहले भी ऐसी पड़ी थी। शुभांगी ने सोचा कि चलो इसको अरेंज कर देते हैं। शुभांगी सुबह से ट्यूशन भी नहीं गई, स्कूल भी नहीं गई, कहीं नहीं गई बेचारी, और शी स्टार्ट अरेंजिंग द चेयर्स। इस चेयर को उठा के यहाँ रखा, इस चेयर को यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ रखा। मम्मी को भी लगा यार शुभांगी पागल हो गई है क्या, दिन भर से यही कर रही है, शी हैज नॉट टेकन लंच, नहाई भी नहीं। शाम को 6 बजे गेस्ट आने वाला था, 5:30 तक ये सुबह 5:30 से इवनिंग 5:30 तक ये अरेंज ही करती रही, और इसने करीब 10,000 टाइम्स इधर उधर चेंज कर दिया, राइट। और जो शाम को अरेंजमेंट उसको दिखा बनाया उसने, तो उसने बनाया ऐसे 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 और ऐसे। अब गेस्ट आएगा, राइट। अब शुभांगी इसको देखती रहेगी कि यार कुछ तो बोले, क्योंकि शुभांगी ने कॉफी तो नहीं बनाई, कॉफी तो बनाई है इसकी मम्मी ने, राइट। बट देखती रहेगी कि यार कुछ कमेंट करे, कुछ कॉम्प्लीमेंट करे अबाउट हर वर्क, राइट। बट गेस्ट आएगा, चाय पिएगा, और हो सकता है कि बोलेगी यार इस बार चाय काफी अच्छी थी एंड कहाँ से लाई। लेकिन जब एक गेस्ट जाने लगेगा तो शुभांगी क्या मन करेगा तुम्हारा कि इसी में से एक चेयर उठा के, और मैं बोलूँ कि तमीज नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कि मैंने इतना काम किया है, तो आपने इतना काम किया है, राइट। राइट ऋषिकेश, आपने इतना काम किया है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ इधर उधर आपने चेंज करके रख दिया, चेंज दिखे भी, समझो। अब ये 2 के 2, अब देखो कितने साफ मैंने लिखे, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजुडिस योर आंसर वाज रॉन्ग, राइट। भाई अगर ये दोनों ए सिमिलर हैं, मैं बोलूंगी ये ए और ये ए, इस ए को इधर रख दूं, इस ए को ये इधर रख दूं, ये नया वर्ड बन गया, ये वही वर्ड है। दोनों ही एक जैसी, अगर ब्लू कलर की चेयर है बी बी, इस बी को यहां रखो, इस बी को यहां रखो, ये अलग अरेंजमेंट है, ये वही अरेंजमेंट है। दिमाग लगाओ जरा, और थोड़ा ये भी सोचो कि कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, you're preparing for the aptitude or you're preparing for history, एग्जैक्टली। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बट तुम्हारे ज्ञान ने, तुम्हारी किताबों ने, तुम्हारे प्रेजुडिसेस ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया पहला ही, ये सुनो, राइट। So in aptitude, one thing for sure is needed, that is alertness. It's a SRT, it's a situation reaction test. In a given situation, how you're responding. Are we together or not? तो इसका मतलब क्या हुआ? First thing in the arrangement. What we need to learn from here? First thing in the arrangement, arrangement कब होगा? When things are different. अब सोचो, अगर एक चेयर ये होती, एक बी होती, एक सी होती और एक डी होती, ये 2 ही चेयर होती, ए बी, तो एक तो अरेंजमेंट इसका ए बी है और एक अरेंजमेंट इसका बी है। लेकिन ये 2 सिमिलर चेयर है ए ए, तो ए ए भी वही अरेंजमेंट है जो ए का है। भाई आपके यहाँ पे 4 कर्टन हो, ए ए ए ए और ए, इस कर्टन को यहाँ टांग दो, इस कर्टन को यहाँ लगा दो, तो क्या लाइक मम्मी कहेंगी वाह ऋषिकेश तुमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, ये बोलेंगे क्या पागलपन, क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो गया, कैन आई गेट ऑन। तो अरेंजमेंट हैपेंस व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट, व्हेन थिंग्स आर सिमिलर
अच्छा, सिमिलर अगर चीजें होंगी तब अरेंजमेंट क्या कैसे होगा? No. Even I name the chair, the name of the chair is same AA. Rishikesh, don't think like this. Think right, because thinking ही तुम्हारा तो आंसर लाएगी. Sir, we thought you choose to name the chairs the same. Actually, chair are two, right? Chair are two. May or if I even chair are 1,000. A 1,000 chairs. The chairs are similar. How many arrangement are possible? One arrangement. Are we convinced with it or not? Right? ऋषिकेश भाई थोड़ा प्रैक्टिकल तो हो. योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश. छोटे मोटे इंसान तुम थोड़ी हो. यू आर योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश. राइट? तो अब देखो ना, जैसे अब अरेंजमेंट कब होगा? जब आपको अरेंजमेंट दिखे भी. अब एक रूम में लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरे रूम में भी 4 एलिमेंट्स हैं एंड और एलिमेंट्स आर सिमिलर और 6 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स आर सिमिलर. तो आप एक यहां ले आए और दूसरा यहां ले गए, तो ये क्या अरेंजमेंट नया हुआ? इट्स अ न्यू अरेंजमेंट और द सेम. इट्स द सेम. एग्जैक्टली. वेरी नाइस ऋषिकेश. बट अगर इसमें 4 चेयर्स हैं और इसमें 6 चेयर्स थी, अब आपने क्या किया? ये वाली चेयर उठा के इसमें डाल दी. राइट? एंड यू मेक अरेंजमेंट लाइक दिस. ये चेयर उठा के आपने इसमें डाल दी एंड ये वाली. अब बोलोगे हाँ यार, अब ये रूम थोड़ा सा अलग लग रहा है, सही लग रहा है या गंदा लग रहा है, कुछ भी बोलोगे, बट ये डिफरेंट अरेंजमेंट है. तो व्हेन थिंग्स आर सिमिलर, अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन numbers. Right? Are we together or not? जब भी अरेंजमेंट की बात आती है, तो अब अगर इस चैप्टर को बहुत सिंपल बना दें तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता होगा वो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर देयर? राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट? हाउ मेनी, इसका मतलब क्या आना चाहिए आपको? काउंटिंग. अब रीना बोलेगी सर इसमें कौन सी बात है, काउंटिंग तो मुझे आती है 1 2 3 4 5. काउंटिंग करने भी लग सकती है. तो काउंटिंग, सिर्फ हमें काउंटिंग सीखनी है. अब लेट्स लाइक टेक दिस कंप्लीट क्लास एज अ गुड गेम. खेलेंगे हम नेक्स्ट 45 मिनट्स. आर रेडी टू प्ले? और गेम की एक खूबसूरती है, देखो ना, जैसे क्रिकेट खेलते हो गया, तो एक है बॉलर और एक है बैट्समैन. अब बॉलर बॉल डाल रहा है तो एक ही बॉल पे बॉलर की कोशिश है कि ये विकेट ले ले और बैट्समैन की कोशिश है कि 6 मार दे. ये सब. राइट? अब कौन कर पाता है डिपेंड करता है कौन ज्यादा अलर्ट है. कई बार महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाते हैं एंड दे लर्न. आर वी टुगेदर और नॉट? राइट? तो आप यूज योर नॉलेज, योर बुक्स, योर फॉर्मूला एज अ टूल. डोंट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला और बुक्स. आर वी टुगेदर और नॉट? तो लेट्स सी बहुत प्रैक्टिकली. और इस गेम के सिर्फ एक ही रूल है. रूल पहले समझ लेते हैं, देन विल स्टार्ट प्लेइंग. रूल समझ लें पहले. 3 पॉइंट है. एक है देहरादून, हरिद्वार और दिल्ली. देहरादून से हरिद्वार जाने के there are 3 ways or 2 ways. 1 2. एंड हरिद्वार से दिल्ली जाने के there are 3 ways. 1 2 3 4 5. नाउ ऋषिकेश दिल्ली में खड़े हैं, देहरादून में खड़े हैं. मुझसे मिलने आए थे देहरादून ऋषिकेश भाई, और देहरादून में खड़े हैं. और उनसे पूछा जाए कि ऋषिकेश बताओ, हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन गो फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली, वाया हरिद्वार?
खड़े तो ऋषिकेश है, बट ऋषिकेश के सारे फ्रेंड्स भी हेल्प कर रहे हैं. हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऋषिकेश कैन गो फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली वाया हरिद्वार? डिफरेंट वेज. सिर्फ काउंटिंग करनी है. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. आई लव, बिकॉज आप लोग अपना अपना खुद का आंसर सही गलत हो रहा है, होने दो. चाहे 6 गलत हो या 5 गलत हो या दोनों गलत हो या दोनों सही हो. दोनों सही तो नहीं हो सकते भाई, दोनों गलत तो हो सकते हैं. एक 6 और एक 5. एक वे. हाउ मेनी डिफरेंट वेज? अब देखो शुभांगी थोड़ा सा लाइक फियरफुल हो गई. पहली बॉल पे बच गई, कैच बिल्कुल पकड़ते पकड़ते बची. तो दूसरी बॉल पे सिर्फ प्लेसमेंट करने लगी, आराम आराम से खेलने लगी, सेफ. अब देख, अब इन लाइन की शक्ल से को देख के लग रहा होगा कि यार भाई, अब देखो, अब अगर पहले रास्ते से जाए हम शुभांगी, इधर पिक द फर्स्ट वे. अगर ऋषिकेश इस रास्ते से जाए, राइट, तो एक तो रास्ता हुआ 1-3, है ना, एक हुआ 1-4, एक हुआ 1-5. लुक प्रैक्टिकली. And when you are attending my class, you can, as you can write the books. You people are above the books. And 21st century, we are decoding information every second. New informations, new things, innovation, ideas. Right? So take book as a reference and move. Right? दूसरा रास्ता क्या हो? एक तो होगा 2-3, 2-4 and 2-5. तो how many ways are there? How many different ways are there? 6. इसके अलावा कोई रास्ता दिख रहा है? देखो इसके लिए तो बिल्कुल मैंने बेसिक काउंटिंग करी है, अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई. कोई बात नहीं शुभांगी. लर्निंग इज ब्यूटीफुल एंड नेवर फील सॉरी फॉर एनीथिंग. रादर बी फीलिंग सॉरी, बी रियलाइज्ड. रियलाइजेशन चेंज करता है. सॉरी आपको दूसरी बार गलती करने के लिए इंसिस्ट करता है. सॉरी इज अ मोस्ट एब्सर्ड वर्ड टू मी शुभांगी, राइट? सो इन फ्यूचर अगर कोई अगर लग रहा है कि गलत हुआ या कहीं गलती हो भी गई, तो यार ये मैंने ही तो गलती करी थी, इसका मतलब आई वॉज नॉट प्रेजेंट, राइट? सो वॉट इज माई लर्निंग आउट ऑफ इट? एंड वेन यू आर नॉट रिपीटिंग, इट्स एक्चुअली सॉरी फॉर यू एंड एवरी वन. यूल ग्रो लाइक दिस. अभी टुगेदर शुभांगी, राइट? तो अब समझ में आया कि हाउ मेनी वेज वी हैव? 6. अब देखो, अब होता क्या है, जब टीचर 12th में आता है और आप लोग मासूम स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 12th 11th में शुरू होता है, और टीचर बोले पीएचडी इन मैथ्स और समथिंग कि व्हेन थिंग्स आर डिपेंडेंट वी विल मल्टीप्लाई द केसेस, और बोले कि तुम्हें पता है डिपेंडेंट का मतलब? तुम बोलो नहीं सर. तो जिंदगी भर हम यही नहीं पता कर पाए व्हेन थिंग्स आर डिपेंडेंट, व्हेन थिंग्स आर इंडिपेंडेंट, तो पीएनसी क्या खाक होगी. तो लीव इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस बोथ. अगर आप देखो, आप इस स्टेटमेंट को कैसे बोलोगे? यू आर गोइंग फ्रॉम देहरादून टू हरिद्वार एंड देन दिल्ली. समझो, ये एंड वर्ड लगे होने का मतलब ही है प्रोसेस इन कंटिन्यूएशन. समझो, एंड डिपेंडेंट है. जैसे इफ यू आर appearing for the interview, right? Interview for CLAT, PI, GDPI for CLAT और for CAT. इसका मतलब इस बात पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया होगा. तो कैसे बोलते हो? यू आर अपीयरिंग फॉर प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू. ये सब. अब अगर रीना बोले कि आज मैंने लंच में पहले तो खाए छोले भटूरे, फिर खाए राजमा चावल, फिर खाई खस्ता कचौड़ी. पहले खाए राजमा चावल, फिर खस्ता कचौड़ी, एंड देन रसगुल्ले, एंड देन आइसक्रीम, और फिर बोले एंड. इसका मतलब इसका अभी पेट भरा नहीं है. तो एंड का मतलब ही क्या है? अभी प्रोसेस चल रहा है. तो इफ व्हेन एंड वर्ड इज देयर, वी विल मल्टीप्लाई द केसेस. व्हाई वी मल्टीप्लाई द केसेस? प्रोसेस समझ में आ गया. अब इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं. अब अगर इसको मैं लिखूं भाई, एक पहले रास्ते के लिए हाउ मेनी वेज यू हैव? 3.
दूसरे रास्ते के लिए हाउ मेनी वेज यू हैव? 3। के लिए भी 3 4 5 है और दूसरे के लिए भी 3 4 5 है, तो आप कैसे लिखोगे? राइट, तो आप 3 + 3 लिखो, 2 + 2 + 2 लिख दो, या 3 × 2 लिख दो, तीनों एक ही तो बातें हैं। लुक एट द काउंटिंग। तो 3 × 2 का मतलब क्या है? ईदर वी ऐड 3 2 टाइम्स और 2 3 टाइम्स। यस सर। Are we together till now, everyone? Right. तो फर्स्ट दो चीजें, पहली बात हमने क्या सीखी? We learn all. One, arrangement तभी होगा when things are different. When things are similar, arrangement depends on numbers. And third, in questions, if and word is there, it means things are dependent and process is on, and we will multiply the cases. Can you understand now? Are we together all? All right. अच्छा, अब एक मैं दूसरा केस लेता हूं कि ये है दिल्ली, हरिद्वार, देहरा, हरिद्वार एंड दिल्ली। राइट, सेम केस। देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए 2 वेज और हरिद्वार से दिल्ली जाने के लिए 3 वेज, 1 2 3 4 एंड 5। राइट, और आपसे पूछे हाउ एंड दिस टाइम शुभांगी इज इन हरिद्वार। गंगा नहाने गई थी शुभांगी, यहां खड़ी है बहुत खुश, हद खुश खड़ी है शुभांगी। अब गुस्से में बहुत है थोड़ा सा। अब मुझसे पूछा जाए कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज शुभांगी कैन गो फ्रॉम ईदर फ्रॉम हरिद्वार टू देहरादून और दिल्ली। 6 वरिश, 6। क्योंकि देखना कि एक आंसर समझ में तुम्हें क्या आया, बिकॉज एक पहले रास्ते से जाओगे तो फर्स्ट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। एक तो 1 3 है फर्स्ट रास्ते के लिए। इस रास्ते के लिए वरेश आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 3 1 4। प्रैक्टिकली देखना भाई, 1 5। सेकेंड रास्ते के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 1 3 1 4 और 1 5। तो 3 रास्ते ये हुए, 3 ये हुए। तो आप 3 को 3 से ऐड करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो इफ यू कंप्लीट दिस टास्क in 2 ways and this task in 3 ways, so total number of ways are nothing but 2 3 are 6, because here and word is there। ये आपको की पॉइंट मिल गया क्लैट के लिए, and word is there। and का मतलब ही है मल्टीप्लिकेशन, and का मतलब ही है डिपेंडेंट, और ये बहुत हेल्प करेगा आपको पीएमसी के इंटरप्रिटेशन में। otherwise it's actually tough, students like become so prejudiced। समझ में आ गया अभी वरिश? ऑलराइट। एंड नाउ इफ शुभांगी इज इन हरिद्वार से देहरादून जाने के 2 रास्ते हैं और दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं। उससे पूछा गया कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन गो फ्रॉम ईदर टू देहरादून और दिल्ली। शुभांगी बताओ कितने दिखे जा पाओगे तुम? या तो देहरादून चली जाओ चुपचाप, और या फिर चले जाओ दिल्ली, हरिद्वार में मत रुकना। क्या बात है शुभांगी, यू प्लेड वेल दिस टाइम। 5 करेक्ट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टास्क था। हरिद्वार से देहरादून 2 तरीके से चले गए। अब यहां देहरादून पहुंच गए तो भी बात खत्म हो गई, राइट, और दिल्ली पहुंच गए तो भी बात खत्म हो गई। तो वेज कितने हुए? 5। राइट, जैसे आपके घर वाले बोले या तो चुपचाप क्लैट निकाल लो, राइट, या आप निकाल लो आप नीट। तो घर वालों की बात मानने के आपके पास कितने ऑप्शन हैं? घर वाले बोले या तो आप कैट निकाल लो, एग्जैक्टली तो आपने कुछ भी निकाल लिया तो उनकी बात मान ली ना आपने, ईदर और। इज द क्लियर नाउ? सो 2 चीजें सीखी हमने। इफ एंड वर्ड इज देयर वी विल मल्टीप्लाई द केसेस, if either or word is there, either or will there, we will add the cases। it's very simple, it's very simple। all right,
तो बस यही दो ही रूल, इफ एंड वर्ड इज देयर वी विल मल्टीप्लाई द केसेस एंड ईदर और वर्ड इज देयर विल ऐड द केसेस। खेला शुरू किया जाए, गेम के रूल पता चल गए हो तो। राइट अब देखो, अब जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, वन जो डेटा आएगा आपका either in form of numbers, arrangement in numbers मतलब digits, alphabets, geometrical arrangement and miscellaneous, that is mix. One by one we work on all, we'll spend a little more time on numbers because अगर आपको arrangement समझ में आ गया तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। Are we together everyone? Right. So if I say, if you have 5 digits, 1, 2, 3, 4, 5. If we have 5 digits, how many 3-digit number we can make by using these 5 digits? तो मैं बहुत प्रैक्टिकली देखूं कि यार 5 डिजिट्स हैं और मुझे जैसे 5 चेयर्स हैं, बहुत प्रैक्टिकली देखो, डोंट जंप टू द योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीएनसी और समथिंग, बहुत गेम की तरह। यू हैव 5 चेयर्स और घर में आपके पापा ने बोला कि 3 जगह पे आपको ये चेयर्स डालनी है, तो फटाफट ऋषिकेश गया। तो फर्स्ट प्लेस पे चेयर डालने के हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 5। एंड विद टास्क क्या था, आपको टास्क क्या दिया गया था कि आपको तीनों पे चेयर प्लेस पे चेयर डालनी है। टू फिल फर्स्ट प्लेस यू हैव 5 ऑप्शंस और 5 में से कोई एक चेयर रीना पड़ गई होगी, तो अब एक चेयर आपने डाल दी तो दूसरी चेयर कहां से इजाद करोगे तुम? टू फिल फर्स्ट प्लेस वी हैव 5 ऑप्शंस एंड to fill second place we have 4 options। भाई 4 मतलब थर्ड नंबर की चेयर आपने फर्स्ट पे डाल दी, तो फर्स्ट प्लेस पे चेयर रखने के ऑप्शन 5 थे, बट चेयर तो एक ही डालोगे, तो 5 ये ऑप्शन दिखाता है। और घर पे थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जैसे हुआ ना कि इफ वी राइट ए, आपके पास 3 चेयर है ए बी एंड सी, तो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दीज 3 चेयर्स? एक तो एबीसी अरेंजमेंट आएगा, एक एसीबी आएगा, एक बीसीए आएगा, एक बीएसी आएगा, एक सीबीए आएगा, एक सीएबी आएगा। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो अगर मैं देखूं इसको 3 प्लेसेस पे, टू फिल फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 3, सेकंड प्लेस 2, लास्ट प्लेस 1, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट आर देयर? 6 अरेंजमेंट्स आर देयर। तो टू फिल फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 5, एंड टू fill second place 4, and to fill third place 3 options। तो how many different arrangements are there? 5 4 या 23 या 60, तो 60 ways। तो अगर इसी में क्वेश्चन पूछूं by using these 5 digits how many 3-digit number we can make, तो आंसर would be 60, where repetition of digits are not allowed। if nothing mentioned means repetition is not allowed। अदरवाइज मैं क्लियर कट, या एग्जामिनर क्लियर कट बोलेगा कि डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड है। रीना वर टुगेदर, शुभांगी, ऋषिकेश, वरेश, यार एवरीवन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, या तो समझ में नहीं आ रहा है या तो तुम लोग बिल्कुल म्यूट साइलेंट मोड में चले जाते हो। देख क्रिस्टल क्लियर सर, क्या बात है रीना, लाइक द एटीट्यूड। ऑलराइट, सो नाउ आई थिंक वी कैन डील द क्वेश्चंस लिटिल। अब चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन फिर हमसे नंबर्स पे आते हैं। There are 10 multiple choice questions in an examination. How many sequence of answers are possible if the first 5 questions have 4 choices? In the first 4, there are 10 multiple choice questions in an examinations. How many sequence of answers are possible if the first 5 questions
अब तुम्हारे एग्जाम के लिए मान लिया 10 क्वेश्चंस हैं, पहले 5 क्वेश्चंस में 4 चॉइसेस हैं एंड द लास्ट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में 5 चॉइसेस हैं, राइट? तो हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, या हाउ मेनी आंसर्स आर पॉसिबल, सही गलत उसने नहीं पूछा, हाउ मेनी आंसर्स आर पॉसिबल। वे नो 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 रीना, अब देख, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चंस देखो, इधर तो कहीं आया नहीं ना रीना, यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको यू हैव टू सॉल्व ईदर, कहां से आया इसमें, ईदर नहीं आया, ईदर दिस और दिस, एंड में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, और मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि सही है। अब देखो, अब देखो, जो वेरी नाइस, अब देखो, ऐसे देखो 5 क्वेश्चंस हैं, अब इसमें हर क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 चॉइसेस, और जो अगले 5 क्वेश्चन हैं उनमें ए बी सी डी ई 5 चॉइसेस हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क करोगे, तो इन 4 में से कोई एक आंसर करेक्ट हो सकता है, ये सब, राइट? तो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने की आपके पास 4 चॉइसेस हैं, ये सुनो। अब जो सेकंड क्वेश्चन आंसर करने जाओगे उसकी भी 4 चॉइसेस हैं। देखो, अगर ये पीएनसी आप बहुत प्रैक्टिकली देखते हो तो ये 1 घंटा भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इफ यू नॉट सीइंग प्रैक्टिकली, यू आर अटेंडिंग द कीप अटेंडिंग द क्लासेस, तो भी कुछ नहीं होगा। See practically that you are arranging your own business, you are arranging your own life, right? तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव, 4। सेकंड क्वेश्चन के भी तो 4 चॉइसेस हैं, बिकॉज इन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस देयर आर 4 चॉइसेस ईच, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो थर्ड क्वेश्चन को आंसर करोगे तो भी 4 चॉइसेस हैं, फोर्थ क्वेश्चन को आंसर करोगे तो भी 4 चॉइसेस, और फिफ्थ क्वेश्चन को आंसर करोगे तो भी 4 चॉइसेस हैं, ये सब। तो फर्स्ट यू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ये तो हो गया फर्स्ट। एंड पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख, दूसरे के अलावा आपको थर्ड रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा अगर आप साथ में मेरे साथ जिंदा हैं तो, राइट? जिंदा भी बोल रहा हूं, राइट? क्योंकि मेरी नजरों में सिर्फ एक ही पाप है, टाइम किल करना। और मैं इतना आराम आराम से बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाने का कुल ऑब्जेक्टिव है कि आपका ये एक्सपीरियंस बने। You people don't do something because I am saying, you do something because that is right. So next जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके पास आपके पास ऑप्शन कितने होंगे? रीना बिल्कुल सही बता रही हो, 5, वेरी नाइस, 5 5, the same logic, 5 5 and 5. तो what is the right answer? 4 की पावर 5 and 5 की पावर 5। सोच रहे हो, अगर 10 क्वेश्चन है, इतने सीक्वेंस ऑफ आंसर पॉसिबल हैं, तो दिस वुड बी द राइट आंसर, दिस वुड बी द राइट कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब, are we together or not? Is it clear to everyone? Is it right? Now if I say, if we have the digits 1 2 3 4 5, by using these 5 digits, how many 5-digit even number we can make? By using these 5 digits, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सबको, गेम में रहना यार, जैसे बिल्कुल चेस खेलते हो ना। पबजी तो बैन हो गया, बहुत लोगों के दिलों को धक्का लगा होगा इसमें, बहुत बड़ा, कोई बात नहीं। बट 1 2 3 4 5, there are 5 digits. How many 5-digit even number we can make? How many 5-digit
इवन नंबर वी कैन मेक। सिर्फ 5 डिजिट नंबर नहीं बनाना है, तो पहला क्वेश्चन तो 5 डिजिट नंबर ही बना देना, पहले तो 5 डिजिट एंड देन 5 डिजिट इवन नंबर। ट्राई टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। नो, नंबर इज नॉट रिपीटेड, 5 डिजिट, ऋषिकेश का है 6, 5 डिजिट इवन नंबर, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हियर। देखो जब रीना बोलता है यार बाय यूजिंग दीज डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड नो अदर स्टेटमेंट इज देयर, इसका मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, राइट? वरेश मोता 50। वरेश मोता, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कान में साक्षात शिवजी या काली आके बोलती है वरेश आंसर इज 50। हाउ डिड दिस मिरेकल वरेश? हाउ 50 कैन यू एक्सप्लेन? अब देख लेना तुम्हारी गलती कहाँ की है। एक 5 डिजिट्स हैं और मुझे 5 डिजिट इवन नंबर चाहिए, राइट? जैसे आपके पापा बोल रहे हैं कि इन 5 चेयर्स हैं और 5 चेयर्स को यहां पे लगाना है। अब आपको सोचना पड़ेगा भाई इवन डिजिट्स, इसका मतलब इवन नंबर क्या होता है? जिसकी लास्ट डिजिट इवन हो। यस नो? और हम नंबर सिस्टम का भी रिवीजन पीएनसी में ही कर रहे हैं साथ में, बिकॉज इट्स अ वन टॉपिक, इट्स नॉट 2 टॉपिक्स। तो आपको अगर 5 डिजिट इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर कब होगा? व्हेन लास्ट डिजिट इज इवन। व्हेन लास्ट डिजिट इज इवन, नंबर इज इवन। तो इसका मतलब अगर नंबर मुझे इवन बनाना है तो लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, राइट? तो इवन डिजिट इसमें कौन सी है? एक तो 2 इवन है और एक 4 इवन है। तो लास्ट प्लेस फिल्ड बाय ईदर बाय 2 और बाय 4, दो में से कोई एक डिजिट आएगी तभी नंबर इवन बनेगा। रीना 120 तो ऑल नंबर्स बनेंगे, बट ऑल नंबर नॉट बी इवन। अगर मैं बोलूंगा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर वी कैन मेक, आंसर इज 120, यू आर राइट। बट मैंने बोला 5 डिजिट इवन नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट हैज टू बी, बिकॉज आउट ऑफ 120 नंबर जो टोटल 120 नंबर बनेंगे उसमें एक नंबर तो 1 2 3 4 5 भी तो बनेगा रीना। बट क्या ये इवन नंबर है? ये तो ऑड नंबर है, राइट? तो इवन नंबर अगर बनाना है मुझे तो लास्ट डिजिट हैज टू बी इवन, और इवन हमारे पास डिजिट कितनी है? 2। तो लास्ट डिजिट को फिल करने के हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 2 ऑप्शंस, ईदर 2 और 4। अब देखो, ओके, अब दो में से लास्ट प्लेस पे 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए, नंबर इवन रहेगा। अब इस प्लेस पे मैं कुछ भी रखूं, हाउ मेनी एंड हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव टू फिल फर्स्ट दिस प्लेस नाउ? क्या आंसर आएगा? 4 एंड टू फिल दिस प्लेस, 3 एंड टू प्लेस फिल दिस प्लेस, 2 and to fill this place 1. So 4 to 12 to 24 to 48. So how many 5 digit even number we can make by using these 5 digits? 48. You got the logic? देख मैं काउंटिंग उसी तरीके से कर रहा हूं अभी तक, और या अगले सारी क्लासेस में करता रहूंगा जो रूल आपको शुरू में सिखा दिए। अब टुगेदर टिल नाउ, राइट? देखना, अरेंजमेंट करने के लिए आपको, अब जैसे मैं एक स्टोरी से तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें शायद समझ में आया और अब अगले क्वेश्चन कर भी पाओ। मान लिया आप गोलू की मम्मी ने, इस कहानी के सारे पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, अगर इसका सच्ची घटना से कुछ रिलेशन निकलता है तो जस्ट अ कोइंसिडेंस। ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, गोलू की गोलू संडे को क्रिकेट खेलने जा रहा था और गोलू की मम्मी ने बोला कि जा गोलू, ऊपर मैंने कपड़े सुखाए हैं और उठा के ले आ। अब गोलू मुंह बना के गया ऊपर, यार क्या कमाल है, रोज तो पढ़ता रहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस, और अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है और मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने और मम्मी ने बोला कपड़े उठा के लाओ। बेचारा गोलू गया छत पे, उठा के कपड़े ले आया और पटक दिए किसी बेड पे। मम्मी ने देखा कि यार गोलू थोड़ा सा ऐसा हो गया है, तो मम्मी ने उसको एक बड़ी वाली चॉकलेट दी। एंड
चॉकलेट पाके गोलू लाइक ऐसा, राइट, कि यार इतना छोटा काम और इतनी बड़ी चॉकलेट। अगले दिन से गोलू मम्मी पे नजर रखने लगा कि कब मम्मी कपड़े धोएं, राइट, पूरी नजर कि कब मम्मी वॉशिंग मशीन निकालें कपड़े धोएं। एक दिन वो अब फिर से आया कि मम्मी वॉशिंग मशीन निकाल रही थी। उस दिन गोलू ने अपने सारे फ्रेंड्स को मना कर दिया कि चुप रहना दोस्तों, जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाएंगे कोई क्रिकेट नहीं, राइट। मम्मी कपड़े डाले ऊपर सूखने के लिए और वो वेट ही कर रहा था कि गोलू कब बोले मम्मी गोलू, और मम्मी ने बोला गो, लू भी नहीं बोला, सिर्फ गो। एंड ये गोलू गोली गोली की तरह खट 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 छत पे जा करके अपने तो कपड़े उतार ही लाया, अपने पड़ोसियों की उठा लिए। लेकिन मम्मी ने पीछे से आवाज दी, गोलू सुन, इस बार मैंने थोड़े से वुलेंस भी धोए हैं और जितने भी वुलेंस हैं वो सारे अलमीरा में नीचे रखना। अब ये उसने कंडीशन सुनी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली, कहानी में बड़ा राज है। ये कंडीशन गोलू ने सुनी नहीं, क्योंकि गोलू तो बिल्कुल प्रेजुडिस था ना, एक्साइटेड था, राइट, कि वुलेंस आपको कपड़े सारे लाने तो हैं, अलमीरा में रखने हैं, और वुलेंस जो है वो सारे नीचे रखना, क्योंकि अभी सर्दियां नहीं आई हैं, तो वुलन सारे नीचे रखना। अब गोलू कपड़े उठा लाया, इस बार प्रेस भी कर दिए कि यार मम्मी ने कुछ और बड़ा गिफ्ट दे। लेकिन उसने वो सुना ही नहीं था, क्योंकि कि वुलेंस नीचे रखना, तो वुलेंस कहीं बीच में, कभी ऊपर, थोड़े इधर, ऐसा रख दिए। अब मम्मी अलमीरा में जाएंगे, देखिए यार क्या ही कर दिया इसने, दोबारा काम करना पड़ेगा। और गोलू इस मम्मी की तरफ चक्कर लगाता रहेगा कि कुछ तो दें। तो मम्मी क्या देंगी, कोई बताएगा क्या देंगी मम्मी? थप्पड़ राइट ऋषिकेश, बिल्कुल सही, करेक्ट, काफी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस चाटा। ऑलराइट, तो अब देख, दोबारा गोलू काम क्यों डिलीवर नहीं कर पाया, बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड द कंडीशन। तो अरेंजमेंट में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू अंडरस्टैंड कंडीशन। कंडीशन क्या है? मैंने बोला नंबर इवन। अब अगर 5 डिजिट्स थी, 1 2 3 4 5, अब अगर मुझे 5 डिजिट इवन नंबर बनानी है, तो कंडीशन कहां पे है? लास्ट प्लेस पे, लास्ट डिजिट हैज टू बी इवन। अब टुगेदर एवरीवन, राइट? So if I say, if I write number 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 digits है। By using these 8 digits, how many 2-digit number we can make? और इसका आंसर बताएंगे ऋषिकेश। कोई कंडीशन नहीं है। By using these 8 digits, how many 2-digit number we can make? बिल्कुल सही जवाब है, बधाई हो ऋषिकेश जी। मुस्कुराइए कि आप ऋषिकेश पे, राइट। देखो कितना बिल्कुल अमूल माचो, बड़े आराम से तुमने किया। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 डिजिट नंबर बनानी है। टू फिल फर्स्ट प्लेस वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? वी हैव 8, एंड टू फिल सेकंड प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस? वी हैव 7, 7 8 जा 56। अब देखो, अच्छा ये क्वेश्चन किसी को मुश्किल लगा? Any student in this class who would finding this question is, this solution is difficult? No. It means things are actually not difficult. Many time many people make it difficult. चलो मैं तुम्हें एक डिफिकल्ट बना के इसको दिखाता हूँ। अब अगर मैं ही क्लास में आऊं और पीएनसी के नाम पे पढ़ाना शुरू करूं, देखो पीएनसी पढ़ना है, तुम्हें पता भी है एनपीआर का मतलब। अब तुम नन्हे मुन्ने मासूम लोग, मासूम फ्रेंड्स बोलोगे नहीं नहीं सर एनपीआर का मतलब नहीं। मैं बोलूँ ओके, एनपीआर मीन्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, लाइक दिस। एंड तुम्हें पता भी है एनपीआर का मतलब? तुम बोलो नहीं, फिर मैं बोलूँ नोट, एनपीआर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, राइट। तो अगर मुझे 8 में से 2 डिजिट नंबर बनाना होता, तो यहाँ पे n क्या है? 8, r क्या है? 2, तो मैं लिखूंगा 8p2, और 8p2 का मतलब है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 फैक्टोरियल।
और फिर लिखूं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, फिर लिखूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और सारा कट्टम, और मैं बोलूं 8 7 जा 56 आंसर। अब देखो, अब ये सॉल्यूशन अगर आप घर पे दिखाओ तो बोलेंगे हाँ यार टीचर बहुत समझदार था, उसने प्रूव कर दिया कि तुम ना समझ हो, राइट? बिकॉज इट लुक्स लिटिल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, आर टुगेदर नॉट, बट इट इज एक्चुअली सिंपल। ये किन के लिए है? ये जो फॉर्मूले हैं ये मशीन्स के लिए हैं जो जो सोच नहीं सकते बहुत ज्यादा, आर टुगेदर नॉट। और अगर देखा जाए तो आंसर तो एक लाइन में आ गया था। अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले का राज भी बताता हूं। देख, आंसर तो एक लाइन में आ गया था, 8 इंटू 7 56। लेकिन मुझे इसको अगर फॉर्मूला बनाना होगा तो क्या करूंगा मैं? 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट 8 फैक्टोरियल। लेकिन आंसर तो गलत हो जाएगा बिकॉज एक्सेस 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर एक्सेस 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो हद नहीं है यार, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर आप डिवाइड कर रहे हो। तो ऊपर वैल्यू को लिख दूंगा मैं 8 फैक्टोरियल, और नीचे वाली वैल्यू लिख दूंगा मैं 6 फैक्टोरियल। और इसको और खूबसूरत लिखना है तो मैं लिखूंगा 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसी को लिख दूंगा मैं 8p2। तो किसी एंगल से ये तुम्हें शॉर्टकट नजर आ रहा है? नहीं। अब टुगेदर टिल नाउ, तो इफ यू यूज योर कॉमन सेंस, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली इफ यू सी द सिचुएशंस आर थिंग्स आर सिंपल, थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, राइट? अब बिकॉज बात इतनी सी थी 8 7 या 56, उसको हमने इतना बड़ा एंड पहले हमने मल्टीप्लाई किया फिर हमने डिवाइड किया, बिकॉज बिकॉज हमको एक ब्लाइंड पाथ फॉलो करना है, इज मेंशन बाय समवन प्रीवियसली। अब टुगेदर आर नॉट? आपको सिर्फ दो ही बातें दिमाग में रखती है, एंड ईदर और, दैट्स इट। यहां तक हम साथ साथ हैं, राइट? मैं बोलूं इफ वी हैव डिजिट्स 1 2 3 4 5, by using these 5 digits, how many 5-digit number we can make such that number is multiple of 5? Multiple of 5. देखिए कितने लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए कितने लोग कंडीशन समझते हैं। आंसर आए उनका भी ठीक है, मैं तो मानूंगा, जिनका आंसर नहीं है उनका भी ठीक है, बिकॉज वो अपने अकॉर्डिंग आप कंडीशन समझे हो, जैसी कंडीशन समझे होगे वही आंसर आया होगा। बहुत खूबसूरत ऋषिकेश। 24। रीना तुम भी बताओ। 24 वरेश मोहता, बधाई हो वरेश। वरेश ही नाम है ना? वरेश मोहता। हाँ 24 है। शुभांगी कुमारी मिश्रा, शुभांगी मिश्रा बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? नहीं बताओगी? बड़ी जिद्दी हो शुभांगी तुम। हाउ मेनी नंबर वी कैन मेक सच दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5? 5 डिजिट। सब लोग कॉपी पेन के साथ बैठे हो या फिर लोरिया सुन रहे हो तुम लोग मुझसे बैठ के? 5 डिजिट। हाँ 5 डिजिट।
1 2 3 4 5। अब देख, to make a 5-digit number and number is multiple of 5, नंबर 5 का मल्टीपल कब होगा यार? जब लास्ट प्लेस पे 0 हो या लास्ट प्लेस पे 5 हो। यस नो, यस नो। अब 0 तो कहीं यहां दिख ही नहीं रहा है, कहीं 0 दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, तो उसका मतलब 0 है ही नहीं, तो उसका मतलब लास्ट प्लेस को फिल करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5। टू फिल फर्स्ट प्लेस वी हैव जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज 1। अब देखो, कुछ लोग क्लास में बहुत अलाइव है, अलर्ट है, और उनको एक ही क्लास में 1 ईयर में बहुत हद तक पीएनसी का क्लियरिटी आ जाएगी। टू फिल फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? 4 3 2 1। 4 या 24, 4 या 12, 2 या 24 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 24 नंबर बनेंगे। क्लियर है? ऑलराइट, एक खेला और खेलते हैं 5 डिजिट नंबर का। इफ यू राइट नंबर 1 2 3 4 5, by using these 5 digits, listen the question carefully, very carefully, by using these 5 digits, अभी इन क्वेश्चन में एक ही चीज टेस्ट करने का मैं काम कर रहा हूं, आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस? by using these 5 digits, how many 5-digit number we can make such that numbers are more than, sorry, by using these 5 digits, how many numbers we can make? How many numbers we can make? Repetitions is not allowed. देखते हो रीना, क्या तुम कारनामा करती हो? By using these 5 digits, how many numbers we can make? इतना ही क्वेश्चन है बस। अच्छा, 5 फैक्टोरियल 120। अब देखो, क्लास में कई बार बोलता रहता हूं, कभी दिल्ली या हरियाणा रोड बैच की बसों में बैठो तो उसमें लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली ऋषिकेश, तो आंसर कैसे कर दिया भाई साहब आपने? आंसर आप 120 करने के बाद पूछ रहे हैं, बट हाउ मेनी डिजिट्स नंबर सर? ये दिल से अपने, राइट? और अगर एग्जाम में क्वेश्चन हुआ ऋषिकेश 1 2 3 4 5, लेट्स से दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द एग्जाम, यू नो, क्लैट कि 1 2 3 4 5 digits are there. By using these 5 digits, how many numbers we can make? तो क्या आप एग्जामिनर इन्विजिलेटर से पूछोगे एक्सक्यूज मी सर हाउ मेनी नंबर्स? तो बताएगा नहीं, तुम्हें जेल में सीधे भिजवाएगा कि एक लड़का मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट, अज्यूम नहीं कर सकते ऐसा। अब देख, हाउ मेनी, अब देखो, मुझे बोला हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हाउ मैंने बता रखा, हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक, तो नंबर क्या होगा? नंबर ईदर नंबर इज 5 डिजिट, या तो नंबर 5 डिजिट होगा, ईदर, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, या तो नंबर 5 डिजिट होगा यार, या फिर नंबर 4 डिजिट होगा, है ना? और नंबर इज 3 डिजिट, और नंबर इज 2 डिजिट, और नंबर इज 1 डिजिट। यस, यही होगा ना? either number is 5 digit, or number is 4 digit, or number is 3 digit, or number is 2 digit, or number is single digits. तो 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 5 डिजिट नंबर बनेंगे 120। 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 5 इंटू 4 इंटू, नो रीना, 2 इस कितना 120। 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3,
नंबर बनेंगे 60। 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 5 इंटू 4 20। 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 5। तो बाय यूज एग्जैक्टली ऋषिकेश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो 120 प्लस 120 240 प्लस 80, 120 plus 120, 240 plus 60, 300 plus 25, 325 would be the right answer. पहले क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? राइट, करेक्ट रीना। अब देख रीना, जो तूने गलती करी है वाली, ये गलती पता क्यों करी? बिकॉज ऑफ योर बुक्स, बिकॉज ऑफ n फैक्टोरियल। अच्छा, तुम्हें पता भी है n फैक्टोरियल का मतलब? लो, अब तुमने इतना ज्यादा n फैक्टोरियल लिख ही दिया है, तो जैसे लिखा होता है नॉर्मली जब आप पढ़ते हो n फैक्टोरियल इज n, n minus 1, n minus 2 and so on 3 to 1। ये देखा होगा आपने, लिखा हुआ बुक्स में, ये सुनो। और 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1। 4 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना? रिना, एक बात बताओ, 4 फैक्टोरियल तुमने लिखा देखा होगा 4 into 3 into 2 into 1, लेकिन मैं इसको अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख दूं तो भी तो आंसर वही आएगा, 24। बट कभी तुमने 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखे देखा है? ये सुनो, पहले ही बताओ सब लोग बहुत प्यार से, have you seen 4 factorial as written is 1 into 2 into 3 into 4? नहीं। लेकिन अब अगर if this question happens in your interview somewhere, it can be write 4 factorial as 1 into 2 into 3 into 4. So how many of your answer is yes? How many of you no? Yes का तो रीजन समझ में आता है, अगर no then okay, मतलब रीना कह रही हाँ मैं लिख सकते हैं। मतलब 4 factorial को we can write as a 1 into 2 into 3 into 4. So innocent, correct, बिल्कुल सही। बट अगर लिख सकते हैं तो why not in any books have you ever find 5 factorial as 1 into 2 into 3 into 4 into 5? Have you ever seen? और आज पूरी क्लाउड पे, पूरा इंटरनेट पे गूगल कर लेना, कहीं 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 दिख जाए तो साइट को बैन करा देना है कि बहुत चीटिंग कर रहे हैं। अब देखो, नहीं होगा, एंड वी कैन नॉट राइट 4 फैक्टोरियल एज 1 into 2 into 3 into 4। अब पूछो क्यों? पूछो तो, अब पूछो कि क्यों, वाई, तभी मैं बताऊंगा। जिद्दी इंसान हूं थोड़ा सा मैं। आस्क वाई। राइट, बिकॉज सुभागी, meaning of n factorial, this n factorial comes from the arrangement। आज तुम्हें राज समझ में आया होगा, अरेंजमेंट। तो जब आप लिखते हो n factorial, it means we are arranging n things। समझो, if you have n elements, to fill first place, how many options you have? N option you have or one option you have? Tell me one thing। If you have n elements, to fill first place you have one option or n options? Yes, reader. So to fill first place you have n options, and क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, n फैक्टोरियल केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं, तो एक चीज यहां पे आ गई होगी। टू फिल सेकेंड प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? n minus 1। थर्ड प्लेस n minus 2 एंड सो ऑन। लास्ट में तो आपका 3 2 1 ही बचेगा, या 2 1 बचेगा, यस और नो? तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? वी आर अरेंजिंग 4 थिंग्स। When we are arranging 4 things, there are no conditions given. So to fill first place, we have 4 options, ना कि 1। 4 3 2 1। तो what is your answer? कि सर 4 3 2 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 2 into 3 into 4, but we cannot write 4 factorial as a 1 into 2 into 3 into 4, because meaning of 4 factorial is we are arranging 4 things. If we are arranging 4 things, so if no condition is there, how we can fill first place by one way? Are we together till now?
Is it clear, the logic to all of you? Right? तो रीना ने गलती इसीलिए कर दी, देखो रीना ने गलती इसीलिए कर दी, इसने कर दिया 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। इसने सोचा ठीक कि 5 डिजिट नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे, 1 डिजिट नंबर होंगे, बट किया गलत, क्योंकि इसके दिमाग में फैक्टोरियल का फंडा ही गलत चल रहा था, प्रोसेसिंग ही गलत हो रही थी। आर वी टुगेदर टिल नाउ एवरीवन? राइट। तो ये क्वेश्चन, यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई वांट द सॉल्यूशन इन माय नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास विल बी द डीआई ऑन, आई थिंक हर सर बताएंगे आपको। I'll spend around 20-25 minutes more on permutation, and then we'll start the probability, I think. Yes, sir. Right? And that is tomorrow itself. Tomorrow only? Yes. Oh my God. Tomorrow at 4:30? 4:30 or 4? 4? 4. Fine. Okay. So tomorrow is a continuation class, so it's good कि हम अच्छे से इस टॉपिक को सीख पाएंगे, right? तो take the snapshot of this question and this question. इस क्वेश्चन को छोड़ दो. Take the snapshot of this question. How many ways can 4 prizes be distributed among 3 students if each student can get all the prizes? Thank you very much, everyone. Thanks for the patience. Thank you Thanks, so much, Harsh. sir. Thank you, Harsh. Thank you.